Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is resting membrane potential. Topic 8, Chapter 17, Coordination and Control. Yesterday we discussed how membrane potential is developed or some basic terminologies related to resting membrane potential and active membrane potential. We discussed the definition of nerve impulse, then the definition of potential energy, electrical potential and membrane potential, and then if this membrane potential is developed when the neuron is at rest, then this membrane potential is known as resting membrane potential. And on the other hand, if this membrane potential develops when neuron is working, mean it transmits nerve impulse, then this potential is known as active membrane potential. So today our job is to discuss resting membrane potential. There are several factors, 5 different factors which contribute in developing the resting membrane potential, namely sodium potassium ions or concentration of sodium potassium ion, negative organic ions, लीकेज ऑफ पोटेशियम आइंस फ्रॉम द मेम्ब्रेन, हम इसे डिस्कस करेंगे लेटर. नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स व्हेन दिस पोटेंशियल इज डेवलप्ड. मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ 0.07 वोल्ट्स और -70 मिली वोल्ट्स के टोटल जो पोटेंशियल डेवलप होगा एट द एंड वो हम कितना करेंगे 0.70 मिली वोल्ट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The potential which is developed when neuron is at rest is known as resting membrane potential. A typical neuron at rest is more positive electrically outside than inside the cell membrane. A typical neuron, let's say this is outer side एंड दिस वन इज इनर साइड. किसकी इनर साइड और किसकी आउटर साइड? न्यूरॉन की. आउटर साइड ऑफ न्यूरॉन इज मोर पॉजिटिव. मोर पॉजिटिव एंड इनर साइड ऑफ न्यूरॉन एट रेस्ट इज लेस पॉजिटिव. Remember, in this topic we will not discuss directly the term positive or negative, but we will discuss either the site is more positively charged or less positively charged. A typical neuron is more positive electrically outside than inner side. Thus, the net difference in charges between the inner and outer surface of non-conducting neuron is called resting membrane potential. ये जो net difference of charges होगा दोनों के दरमियान, मिसाल के तौर पे 5 पॉजिटिव चार्जेस बाहर की तरफ ज़्यादा हैं लेट से, एंड 3 पॉजिटिव चार्जेस इनर की तरफ हैं, तो 5 - 3 कितना होगा? 5 - 3 2 पॉजिटिव चार्जेस बाहर की तरफ ज़्यादा है. तो नेट का मतलब है कि जो नेट पॉजिटिव चार्ज होगा जिस साइड पे ज़्यादा, तो अगर बाहर की साइड पे ज़्यादा हो तो फिर वो क्या होगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा. इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डेवलप करने में 5 फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम एंड पोटेशियम आइंस. Sodium and potassium ions of many kind of ions present in the nerve cells and surrounding fluid
सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो कहता है कि सोडियम एंड पोटेशियम आयंस के अलावा दूसरे भी इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड आयंस, दूसरे भी इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन मौजूद होते हैं, बट सोडियम एंड पोटेशियम आयंस आर मोर इम्पोर्टेंट। Sodium ions are 10-fold higher in concentration outside than inside of the membrane surface. सोडियम आयंस जो होंगे वो 10 टाइम्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं आउटसाइड द मेम्ब्रेन एज कंपेयर टू इनर साइड। सेकेंड पॉइंट, सोडियम आयंस आर 10 times higher in concentration outside than inside of the membrane, whereas potassium ions are 20-fold और 20 times मोर होंगे कंसंट्रेशन में इनसाइड देन आउटसाइड। और जो पोटेशियम आयंस हैं वो 20-fold मोर होंगे, ज़्यादा होंगे इनसाइड देन आउटर साइड। Next, all the neurons have very active sodium and potassium pumps. Concentration के बाद sodium and potassium pump is implanted in the membrane. membrane के अंदर क्या होता है, sodium and potassium pump implant होता है। The duty or job of sodium potassium pump is to transport sodium and potassium across the membrane into the cell or out of the cell. These pumps transport sodium out and potassium into the cell. Specifically talking, its job is to transport sodium and potassium ions across the membrane. But specifically talking, सोडियम बाहर की तरफ और पोटेशियम जो है वो किसकी तरफ मूव करता है, वो इनर साइड की तरफ। अब आप देखें कि वो सोडियम को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है जहाँ पे वो ऑलरेडी हायर अमाउंट में है एज़ कम्पेयर टू इनर साइड। पोटेशियम को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहा है जहाँ पे वो ऑलरेडी हायर अमाउंट में है एज़ कम्पेयर टू आउटर साइड। यानी कि ये जो पंप वर्क कर रहा है ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है। दिस पंप इज वर्किंग अगेंस्ट सोडियम पोटेशियम pump working against the concentration gradient. So if anything is moving against the concentration gradient or from lower concentration to higher concentration, then we need some amount of energy and this energy will be provided in the form of ATP। और ये एनर्जी किस फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ ATP। फॉर एवरी 2 पोटेशियम्स, अब इसके मूवमेंट का भी एक उसूल है, एक रूल है जिसके तहत ये सोडियम एंड पोटेशियम आयंस मूव करते हैं। फॉर एवरी 2 पोटेशियम 3 sodium ions are move outside and 2 potassiums are move inside। जब ये सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता है तो ये किस रूल के तहत करता है, 2:3। 2 सोडियम मूव करेंगे इनसाइड, 2 सोडियम मूव करेंगे आउटसाइड एंड 3 पोटेशियम मूव करेंगे इनर साइड। सो 2 सोडियम मूव कर रहे हैं आउटर साइड और 3 पोटेशियम मूव कर रहे हैं इनर साइड, बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। एट द एंड और आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट
कि कहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा, कहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। ऑब्वियसली अगर बाहर की तरफ, अगर इनर साइड 2 पोटेशियम विल मूव इनर साइड फॉर एवरी 3 सोडियम आयन मूव आउटर साइड। सो अगर एक पंप ऑपरेट कर रहा है और वो दोनों तरफ चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें अनइक्वल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 3 सोडियम आइंस बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं और 2 पॉजिटिव चार्जेस अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, तो एट द एंड जो बाहर की तरफ सोडियम आइंस हैं और पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा क्यूमुलेट हो जाएगा एज कंपेयर टू इनर साइड। सेकेंड, द कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस। फर्स्ट पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बाद मज़ीद इनर साइड को नेगेटिव बनाने के लिए न्यूरॉन क्या करता है, नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस लाइक सम प्रोटीन्स, सम अमाइनो एसिड्स और अदर मालिक्यूल, बायोमालिक्यूल विच आर नेगेटिवली चार्ज, उन्हें अपने अंदर क्या करना शुरू कर देता है, क्यूमुलेट, ताकि इनर इन्वायरमेंट को क्या बनाया जा सके और मोर नेगेटिव बनाया जा सके, लाइक सम अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। कौन से अमाइनो एसिड, कौन से प्रोटीन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज। थर्ड, लीकेज ऑफ पोटेशियम आइंस। जो पोटेशियम आयन अंदर की तरफ एक्यूमुलेट किए होते हैं वो भी मेम्ब्रेन से क्या कर जाते हैं, लीक हो जाते हैं। मीन कि पॉजिटिव चार्जेस मज़ीद क्या हो गए हैं, सोडियम के न्यूरॉन के इनर साइड पे कम हो गए हैं। नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जिस दौरान ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है इनर साइड को मोर नेगेटिव बनाने का, उस दौरान कोई नर्व इम्पल्स इसके ऊपर से ट्रांसमिट नहीं कर सकती। इस वजह से ये जो ग्रेडियंट डेवलप होता है ये डिस्टर्ब नहीं होता। फिफ्थ वन इज आफ्टर ऑल दिस स्ट्रगल, जो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन और साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन इज -70 मिलीवोल्ट्स। वो कितना होगा, -70 मिलीवोल्ट्स। So this is all about the resting membrane potential and the factors involved in establish this potential. First of all, sodium potassium ions which are electrically charged ions, वो अपने आप को क्या करवा लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करवा लेंगे। पोटेशियम आइंस, सोडियम आइंस बाहर की तरफ एक्यूमुलेट होंगे और पोटेशियम आइंस इनर साइड पे एक्यूमुलेट होंगे with the help of sodium potassium pump, and this sodium potassium pump transport 3 sodium ions outside and 2 potassium ions inner side. After a certain period of time बाहर की environment ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, इनर साइड की कम पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि 3 आइंस पॉजिटिव बाहर मूव कर रहे हैं और 2 आइंस उसके बदले में अंदर मूव कर रहे हैं। मज़ीद ऑर्गेनिक इन नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस को न्यूरॉन क्या करता है, क्यूमुलेट करता है, लाइक सम अमाइनो एसिड्स नेगेटिवली चार्ज और सम प्रोटीन्स। लीकेज ऑफ पोटेशियम आइंस, जो पोटेशियम आइंस एक्यूमुलेट किए होते हैं वो भी वहाँ से क्या कर जाते हैं, मेम्ब्रेन के थ्रू लीक करके आउटर साइड पे चले जाते हैं। मीन उसका एनवायरनमेंट मज़ीद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। इस दौरान न्यूरॉन कोई नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं करता, अपने ऊपर से ट्रैवल नहीं करवाता ताकि ग्रेडियंट डिस्टर्ब ना हो। And after all this struggle, the charge that accumulate inside of the neuron is -70 millimoles. This is all about your today's lecture.